Hello students, in the last lecture in the accounting I have taught you different topics. Today I am going to discuss the next topic, that is types of accounting. So the next topic is types of accounting. तो चलिए start करते हैं. What are the types of accounting? In previous lecture हमने discuss किया था objective of the accounting, which is bookkeeping, recording. Okay, the object of bookkeeping is to keep a complete record of all the transactions that placed in the business. To achieve this objective, business transactions have been classified into three categories, which is transactions relating to persons, transactions relating to properties and assets, and transactions relating to incomes and expenses. तो इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स है अकाउंटिंग के. वेरियस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड वेरियस टाइप्स भी है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन्स, देन सेकेंड इज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज एंड असेट्स, एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. तो इसके रिलेटिंग डिफरेंट टाइप्स है अकाउंटिंग के, वो हम देखेंगे. द अकाउंट्स फॉलिंग अंडर द फर्स्ट हेडिंग आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स. टाइप्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट टाइप इज द पर्सनल अकाउंट्स. The accounts falling under the first heading are known as personal accounts. The accounts falling under the second heading are known as real accounts. And the accounts falling under the third heading are called nominal account. तो ये थ्री टाइप्स है अकाउंट्स के. फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट, देन अंडर द इम्पर्सनल अकाउंट्स दो अकाउंट्स आते हैं. दो अकाउंट्स के टाइप्स है. फर्स्ट इज द रियल अकाउंट्स एंड सेकेंड इज द नॉमिनल अकाउंट्स. द अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट. ओके, तो एक एक टाइप्स हम देखते हैं. फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट्स अकाउंट्स रिकॉर्डिंग transactions with a person or group of persons are known as personal accounts. Okay, personal accounts means accounts recording transactions with a person or group of persons are known as personal accounts. These accounts are necessary in particular to record credit transactions. Personal accounts are of the following types, which are natural personal persons, then second is artificial or legal persons, and third is the groups representative personal accounts. तो पर्सनल अकाउंट्स के सब टाइप्स है, विच इज नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन्स एंड ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. natural person is the an account recording transactions with an individual human being is termed as a natural person's personal account. Example, Kamla's accounts, Mala's account, then Sharma's accounts. Okay, both males and female are included in it. जब भी कोई पर्सन के नाम पे जो भी कोई अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है उसका, कोई पर्सन का पर्सनल अकाउंट है, उसको कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल कमला नाम के फीमेल का अकाउंट है, उसको हम बोलेंगे कमलाज अकाउंट. देन माला का है मालाज अकाउंट, एंड शर्माज का है शर्माज अकाउंट्स. तो किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का कोई अकाउंट है, कोई नेचुरल पर्सन है उसका अकाउंट है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स. नेक्स्ट टाइप इज द आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन्स. An account recording financial transactions with an artificial person created by law or otherwise is termed as an artificial person, personal account. Example, firms accounts, limited companies accounts, educational institutions accounts and cooperative society account. तो कोई फर्म्स का अकाउंट है, कोई बिजनेस में कोई अकाउंट है, कोई लिमिटेड कंपनी का अकाउंट है, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन्स अकाउंट. मीन्स वहाँ पे नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल कोई नहीं होगा, वहाँ पे कोई
आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन होगा, मीन्स कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई लिमिटेड कंपनी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसका जो भी अकाउंट रहेगा बैंक में उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन्स अकाउंट. The next type is the groups or representative personal accounts. An account indirectly representing a person or persons is known as representative personal accounts. When accounts are of a similar nature and their number is large, it is better group them under one head and open a representative personal account. For example, prepaid insurance, outstanding salaries, rent and wages. तो ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आएगा, देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज है उसका कोई अकाउंट है, एंड रेंट और वेजेस का अकाउंट है, तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस ही इज नोन एज प्रोप्राइटर. हमने पहले भी डिस्कस किया था. द प्रोप्राइटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट फॉर ऑल दैट ही invest in business and by drawings accounts for all that which he withdraws from business. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग्स. ओके, सो कैपिटल अकाउंट्स एंड ड्राइंग्स अकाउंट आर आल्सो पर्सनल अकाउंट्स. तो कैपिटल अकाउंट्स और ड्राइंग्स अकाउंट है उनका नेचर कैसा है? पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कंपनी स्टार्ट की है, उसका बिजनेस है, तो उसका कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा. और अगर वो उसके कंपनी से कोई ड्राइंग्स कर रहा है, कुछ वहाँ से कुछ कैश खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है, उसका एक अलग सा अकाउंट होगा, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट. द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप याद रखो. क्या रूल है? द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इज इम्पर्सनल अकाउंट्स. उसमें आता है रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स, अकाउंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज और असेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट्स. ओके, जितने भी प्रॉपर्टीज और असेट्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनाए गए उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट्स. A separate account is maintained for each asset. सेपरेट असेट्स के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है. ईच असेट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है. सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच असेट. ओके, एग्जाम्पल कैश मशीनरी, बिल्डिंग. ओके, बिल्डिंग है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, मशीनरी के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, कैश के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स के दो टाइप्स है, उसमें आता है टैंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स. तो टैंजिबल रियल अकाउंट्स मीन्स these accounts represent assets and properties which can be seen, touched, felt, measured, purchased and sold. टैंजिबल रियल अकाउंट्स में कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी और असेट्स आएंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सीन, टच कर सकते हैं, फेल्ट, फील कर सकते हैं हम उसको, देन मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, देन परचेस्ड एंड सोल्ड मीन्स हम उसको परचेस कर सकते हैं उस असेट को और प्रॉपर्टीज़ को, और सोल्ड कर सकते हैं उसको. क्या बोलेंगे? उसके अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? टैंजिबल रियल अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट. ये अकाउंट कैसे? टैंजिबल रियल अकाउंट्स. द नेक्स्ट इज इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स. These accounts represent assets and properties which cannot be seen, touched or felt, but they can be measured in terms of money. अभी टैंजिबल रियल अकाउंट्स में हमने देखा कि हम उस प्रॉपर्टीज़ को, असेट्स को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं,
और मेजर कर सकते हैं और परचेस और सोल्ड कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, उस अकाउंट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स। पर इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में क्या होता है कि हम असेट्स और प्रॉपर्टीज़ को देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, टच नहीं कर सकते और फेल्ड, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पर हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल गुडविल अकाउंट्स, पेटेंट अकाउंट्स, ट्रेडमार्क अकाउंट एंड कॉपीराइट्स अकाउंट। जितने भी इंटेंजिबल असेट्स है कंपनी के, उनके जो भी अकाउंट्स है उसको हम बोलेंगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। उसमें आएगा एक तो गुडविल अकाउंट्स, पेटेंट अकाउंट्स, कोई पेटेंट है आपकी कंपनी का उसका अकाउंट्स है, देन ट्रेडमार्क्स अकाउंट है और कॉपीराइट्स अकाउंट है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लिए क्या रूल है, द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के लिए हमने रूल देखा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमेशा याद रखना। देन रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, देन सेकेंड टाइप्स आता है, सेकेंड टाइप्स ऑफ अकाउंट इज द nominal accounts. Nominal account is the accounts relating to income, revenue and gain, expenses and losses are termed as nominal accounts. इसके रिलेटेड ये अकाउंट इनकम है, रिवेन्यू है, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, उसके रिलेटेड अकाउंट है, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। दिस अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्शियस अकाउंट्स एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी टेंजिबल असेट, उसमें कोई टेंजिबल असेट्स रिप्रेजेंट किया नहीं जाता है। अ सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच हेड और एक्सपेंस और लॉस एंड गेन और इनकम। एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसमें ईच हेड के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, उसमें एक्सपेंस और लॉस एंड गेन और इनकम के। वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट्स के एग्जांपल क्या आते हैं, क्या हो सकते हैं, वेजेस अकाउंट है, देन रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट है, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो ये सब अकाउंट कैसे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो हमने रूल्स देखे थे पर्सनल अकाउंट के और रियल अकाउंट के। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल है, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल आता है, द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट्स में देखा था, डेबिट में क्या जाता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रूल फॉर रियल अकाउंट क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में क्या जाता है, व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनल अकाउंट में द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट में आएगा ऑल इनकम्स और गेन, जितने भी आपको इनकम हुए, जितना भी गेन हुआ है वो किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहे हैं वो किस में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट भी आपको क्लियर है। तो ये था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।